नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और कोविड संक्रमण हर दिन के साथ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम कोविड से जुड़ी सावधानी का पालन हर हाल में करें। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क ज़रूर पहनें और हैंड और ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज के इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोविड से जुड़े एक बेहद अहम पहलू की, जो है उपचार के मानक तौर तरीके, यानी कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर कोविड-19। इस बारे में सटीक सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स, और अगर इस संबंध में आपके कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स खुल चुकी है। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 011-233-87031। नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट करूं, 011-233-87031। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी प्रीति। Thank you so much, Nikhil. Yes, we welcome all our viewers to this edition of Dr. Speak, a program which we get for you every day to make sure all your doubts and queries about COVID, the pandemic, are dealt with. Today, we will be discussing about treatment protocols for COVID patients. Treatment, if given correctly, can save lives of people and can also save many others surrounding the patient with, save those people from mental distress as well. To talk more about it, we are joined in by a panel of doctors today. We are joined in by Dr. M.V. Padma Srivastava, Professor and Head, Department of Neurology, AIIMS. We are joined in by Dr. Ghanshyam Pandey, Professor, Department of Medicine, Lady Hardinge Medical College. Dr. Ved Prakash, HOD, Pulmonary and Critical Care, Medical KGMU, Lucknow. We welcome all of you this afternoon, and for our viewers, all the questions related to this topic and in generic related to COVID-19, you can put to our viewers on the numbers which have been mentioned by Nikhil and also on our social media platforms. To begin with, Dr. Pandey, it's a very basic question. If a person is found to be positive, what is the treatment protocol that has to be taken? Till what extent can symptoms be cured in home care? Or for that matter, when is it the right time for a person to be taken to a hospital? Good afternoon, Dr. Ma'am Preeti. First of all, I would like to just correct my name. It's Dr. Pangti or Dr. Ghanshyam Pangti, not a Pandey. And regarding this COVID, 80 to 90% of the patient may not require hospitalization. So anybody who is COVID positive by RT-PCR or a RAT antigen do not require admission in a hospital setting. So they may have features like fever, which is usually now high grade. It may be 101, 102. Second symptom is like sore throat, cough, maybe a second symptom. Third symptom in a few patients, like next 10 to 20%, they may have some breathlessness. More common features which are coming up is headache also. So fever, headache, these features are there. We usually advise them to have a pulse oximeter. They can see it's put on a finger. You can see oxygen saturation of a person. Normally it's between 95 to 100. So if someone has 95 to 100, nothing to worry. No need for admission, no need for any other things is required. But someone whose saturation falls below 94, so 95 is normal, so someone has a saturation of less than 94, they should go to hospital, especially COVID hospital. And patients who are not eating well, patients who are not responding, so they are incoherent, they are slightly drowsy or unconscious, or they are looking very sick, or they are feeling very sick, they only require hospitalization for COVID. Other than that, 80 to 90% doesn't require any hospitalization, and they can just take symptomatic treatment with a fever drug like a paracetamol. They can take any antihistaminic or allergic tablets which are available on the over the counter also, like cetirizine, and other things is like warm goggles and all. They are good enough. Only few patients will require hospitalization. बिल्कुल। और डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, अब आपके पास आते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर लक्षण आते हैं, इसको शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। लक्षण आते हैं, मान लीजिए पहले दिन बुखार आ जाता है, क्या करना चाहिए उसको, किस तरह से डॉक्टर को अप्रोच करें, और क्या, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतना ही फायदा होगा, तो
तो क्या वो अपने आप से मेडिकेशन शुरू कर दे या किसी डॉक्टर के पास जाए या पहले जांच कराए और उसका इंतजार करे? क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है। स्पेशली आजकल ना बेड्स मिल रहा है, ना आपके कंसल्टेशन हो सकता है, ना टेस्टिंग के रिजल्ट या टेस्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। इनफैक्ट अगर ये सारे चीज बहुत अच्छी तरह उपलब्ध होता तो हमारे जो जनरल प्रिंसिपल है कि ज्यादा तक अगर देखेगा कोई एसिम्टोमेटिक है कि आपने टेस्ट कराया क्योंकि आप कांटेक्ट में थे और आप पॉजिटिव आ गया, तो आप पहले आइसोलेट हो जाइए घर पे और कुछ मत करिएगा। सेकंड, आप सिम्टोमेटिक है तो सिम्टोमेटिक में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कॉमन सिम्टम्स, बुखार आ गया, सोर थ्रोट है, कुछ खांसी है, कुछ जुकाम जैसे हो गया, बॉडी एक हो गया, हेडेक हो गया, तो फीवर के लिए आप तुरंत अपना पैरासिटामोल ले लीजिएगा। बाकी जो दवाइयां हैं ज्यादा मत लेना, एट द मोस्ट एक नाप्रोक्सिन की दवाई होते हैं वो ले सकते हैं। और कुछ प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट जो एल्गोरिदम्स में आजकल अवेलेबल है उसके लिए मैं कहती हूँ कि टेली कंसल्टेशंस कर लीजिएगा। बहुत सारा टेली कंसल्टेशंस अभी अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जरिए भी ये होता है ताकि आप डॉक्टर के संपर्क में रह सकते, पर अगेन आइसोलेट हो जाइएगा, पैरासिटामोल ले लीजिए, रेस्ट ले लीजिए, फिजिकल एक्सर्शन ना करिए, हाई प्रोटीन डाइट ले लीजिए, डिहाइड्रेशन को मना कर लीजिएगा, एंड यू टेक अ ऑक्सीमीटर, एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पल्स ऑक्सीमीटर का आप चेक करिए। आजकल की ये कहते हैं कि 94 भी नहीं, आप 92 90 तक आप ठीक ही है। आप अगर आजकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहे, ना बेड मिल रहा है, तो अगर ऐसे कुछ फॉल हो रहा हो तो प्रोन पोजीशन पे आप कर सकते हैं ना। जो टेली हेल्थ या टेली कंसल्टेशन में ये इसके जरिए कुछ मेडिसिन आजकल बताते हैं कि घर पे आप ले सकते हैं, जैसे कि ये जो है ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट है, पर जैसे हमारे एम्स एल्गोरिदम में टैबलेट आइवरमेक्टिन है, एक कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन है, आराम से घर पे वो ले सकते हैं। बट मॉनिटरिंग ये होगा कि आप अपना बुखार चेक करिएगा और ऑक्सीमेट्री जे ऑक्सीजन सैचुरेशन आप चेक कर लीजिए। एक 6 मिनट वॉक टेस्ट भी होता है, जैसे सुबह आप लेटे लेटे आपने ऑक्सीजन आपने सैचुरेशन चेक कर लिया, वो हालांकि 95 है, तो 6 मिनट आप अपने कमरे में ही आप चले, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिएगा, उसके बाद दोबारा आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर लीजिए। अगर वो काफी हद तक नीचे गिर रहा है, 90 तक आ गया, उससे नीचे आ रहा है, तो वो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है। दूसरा, अगर आपकी बुखार 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उतर ही नहीं रहा, बाकी कॉम्प्लिकेशंस आपका सेट इन हो गया कि सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सेंसोरियम चेंजेस आ रहा है, तो इसी तरह कुछ हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास या बेड के लिए अवेलेबिलिटी के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तीसरा है कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो भी आजकल ये घर के साथ ही आप कर सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स है जो भेजना पड़ता है, वो आप अगेन डॉक्टर के संपर्क में टेली तो जो कंसल्टेशन के जरिए वो घर से भेज के उसके जरिए भी डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं। पर जो चीजें आपको खुद नहीं करना है वो अपने आप स्टेरॉइड मत स्टार्ट करिए, अपने आप ब्लड थिनर शुरू नहीं करिएगा, और अपने आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जो मात्रा में लेना है उससे ज्यादा ले लिया, आपको रेगुलेशन नहीं पता चलता है, ऐसे ना करिए। तो ये चीजें ना करिए, ज्यादा घबराना नहीं, एंड ज्यादा अपने आप मेडिसिन ना ले। दिस शुड बी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। सो एंड देन द अदर थिंग इज, जो आप बाहर जाते, जैसे आप चले गए एक्सरे कराने चले गए, सीटी कराने चले गए, तो ये ग्रुप आप अपने आप कहीं जगह जहां जाने से आपका ज्यादा इन्फेक्शन होने का, इन्फेक्शन फैलाने का भी ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो दीज आर द डोंट्स टू बी डन, एंड अगेन द टेक होम मैसेज इज यस, ज्यादा तक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, but you have to remember कि in this second wave we do have a more probably virulent strain because younger people जिसमें बुखार ज्यादा और जिनकी ऑक्सीजन की कमी जो है बहुत जल्दी आना और बहुत जल्दी डिट्यूरेट होना ये हो रहा है, इसलिए ये रेड फ्लैग्स आपके ध्यान पे रहना चाहिए। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज शुड बी सेल्फ मेडिकेट, अपने आप ना करिए, प्लीज टेक अ डॉक्टर्स कंसल्टेशन, वो टेली ही सही, बट डोंट डू दिस सेल्फ मेडिकेशन बाय योरसेल्फ। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। जी
डॉक्टर पद्मा, आपसे और हम अपने बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ में डॉक्टर वेद प्रकाश आपके पास इसके बाद आएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश भर में कोविड की सिचुएशन है उसकी समीक्षा की है, एक बड़ी रिव्यू मीटिंग की है और इसमें तमाम सारे जो पहलू हैं इसको लेकर के उसकी समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने पूरे जिलेवार और राज्यवार इस बात की जानकारी ली है कि किस तरह की सिचुएशंस हैं, जिलों में किस तरह से हालात हैं। वो 12 राज्य जहां पर 1 लाख एक्टिव केसेस से ज़्यादा है उनकी भी जानकारी ली है प्रधानमंत्री ने, और ये उन जिलों की भी जानकारी ली है जहां पर ये केसेस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की है, किस तरह से दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है कि लोगों को मदद दी जाए और गाइडेंस दिया जाए स्टेट्स को कि किस तरह से वो जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाए इस समय पर और ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, जो टीकाकरण का जो ड्राइव चल रहा है उसको भी रिव्यू किया है, उसकी समीक्षा की है और किस तरह से इसको और तेज़ गति से आगे बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा की है और उसको आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ स्टेट्स को किस तरह से सेंसिटाइज किया जाए कि वो वैक्सीनेशन की इस ड्राइव को और तरीके से आगे बढ़ाएं, इस पर भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। तो ये एक बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ इस पूरी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, क्या सबसे पहले आप हमें पूरी खबर बताएं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने समीक्षा की है, कौन लोग बैठक में मौजूद हैं, किनको निर्देश दिए गए हैं और किस तरह से इस पूरी कोविड सिचुएशन को रिव्यू किया है प्रधानमंत्री ने? देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही व्यापक समीक्षा बैठक की है और इसमें राज्यों के साथ बैठक हुई है। राज्यों के बिंदुवार उन्होंने जानकारी लिया है, उनको बताया गया है कि किन किन राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से मामले बढ़े हुए हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ज्यादा प्रभावित हैं उनको भी विस्तार से प्रधानमंत्री को बताया गया है और इस पर डिटेल समीक्षा बैठक हुई है जिसमें राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और मनसुख मांडविय, ये तमाम लोग केंद्रीय मंत्री शामिल थे इस बैठक में। और एक डिटेल बैठक में ये इस बात को तय किया गया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज में क्या क्या सिचुएशंस है, मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या अभी स्थिति है और कितना और बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही साथ तमाम राज्यों को और जिला तक उन तक मेडिसिन सुनिश्चित हो, उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस बात का भी इस बैठक में समीक्षा की गई है। साथ ही साथ वैक्सीन ड्राइव को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने विस्तृत जानकारी लिया है और उनको बताया गया है कि अब तक कितने वैक्सीनेशन हो चुके हैं और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है सभी राज्यों को और अपने उच्च अधिकारियों को और केंद्रीय मंत्रियों को कि वैक्सीनेशन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और वैक्सीनेशन में शामिल है उनको किसी दूसरे काम में न लगाया जाए और वैक्सीन सब लोग को सुनिश्चित किया जाए कि उनको मिले और चाहे लॉकडाउन हो या फिर रिस्ट्रिक्शंस हो, इसका असर वैक्सीनेशन पर नहीं होना चाहिए। तो एक बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। यह भी बताया गया कि 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब तक सप्लाई हो चुका है राज्यों को और देश की जो 31% एलिजिबल पॉपुलेशन है जो 45 साल से अधिक है उनको वैक्सीनेशन किया जा चुका है, उनको एक डोज दिया जा चुका है। तो ये भी बाकायदा बताया गया है प्रधानमंत्री को। साथ ही साथ 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केस है, उस पर खास फोकस करने की बात हो रही है कि वहां पर कैसे मामले को कम किया जाए और वहां पर हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अस्पताल हो, कोविड केयर सेंटर हो या फिर लोगों को या होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको किस तरीके से देखभाल किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरीके से मेडिकल सप्लाई में, ऑक्सीजन की सप्लाई में या फिर मेडिसिन की सप्लाई में कोई दिक्कत ना आने पाए। जी निखिल, इसके साथ ही साथ वो जिलों को भी की क्या बात की गई है, क्या ऐसे जिलों को भी चिन्हित किया गया है जहां पे 10% से ज़्यादा केस आ रहे हैं या ऐसे राज्यों को चिन्हित किया गया है ऑलरेडी जो जहां पर 1 लाख से ज़्यादा केसेस है, क्या वहां के लिए भी कुछ स्पेशल डायरेक्शंस दिए गए हैं? प्रधानमंत्री ने उन पर भी फोकस किया है? जी बिल्कुल, ये बताया गया है कि जहां पर भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है जिन जिलों में, जिन राज्यों में और जहां पर
जो आईसीयू और जो उनके जो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की कैपेसिटी 60% से अधिक भर गया है, तो ऐसे जिलों को ये एडवाइस किया गया कि वहां सख्ती बरते। जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन थी कि वहां पे जो सर्विलेंस हो या फिर कंटेनमेंट जोन है उसको बना करके सख्ती से इसका पालन किया जाए, घर घर सर्वे किया जाए, टेस्ट ट्रेस पे फोकस किया जाए और साथ ही साथ वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, ये भी सलाह दिया गया है। खास तौर पे ऐसे जिलों की पहचान की गई है, करीब करीब 200 से अधिक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और 24 ऐसे राज्य हैं जहां पर करीब करीब 15% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां मामले और नहीं बढ़े और उसका असर हेल्थ सेक्टर पे ना हो, हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस पर दबाव ना बढ़े। इसीलिए पहले से जिलाधिकारी और राज्य सरकारों को कहा गया कि वो अपनी तैयारी करें और पहले से एक तरह से तैयारी रखें ताकि हालात को संभाला जाए। लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि भीड़ भाड़ में जाने से बचे, बहुत जरूरी ना हो तो वो घरों से ना निकले, साथ ही साथ वो मास्क जरूर लगाए, 2 गज की दूरी का पालन करे और हाथ साफ करते रहें। इसको भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और जो एम्बुलेंस सर्विसेज है उनको भी स्ट्रेंथन करने की बात है कि मान लिया रूरल एरिया में, गाँव के एरिया में अगर फैलता है, कोई संक्रमित होता है तो उसको रेफरल अस्पताल में लाया जाए, उसको ब्लॉक स्तर पे भी अच्छी व्यवस्था हो, इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जी, क्या दवाओं की उपलब्धता और खास तौर पर रेमडेसिविर की उपलब्धता को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए रणवीर की कैपेसिटी बढ़ा है, तकरीबन 3 गुना अब भारत में प्रोडक्शन हो रहा है और करीब 30 से ज्यादा जो कंपनी है वो प्रोडक्शन कर रही है, तो रणवीर की कोई कमी नहीं हो, इसकी सप्लाई चेन सुनिश्चित हो, हर राज्य को पर्याप्त मात्रा में मिले और वो दवा अस्पतालों तक पहुंचे और लोगों को कोई दिक्कत न हो जो गंभीर रूप से मरीज है, बीमार है और जिनको जरूरत है उनको सूचित किया जाए, पहुंचाने में कोई दिक्कत न हो। तो भारत ने अपने कैपेसिटी को अच्छे खासे बढ़ाया रेमडेसिविर की जहां तक बात है, या फिर दूसरी जो ड्रग्स है जो डॉक्टर से एडवाइस करते हैं उनकी भी किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, देश के किसी भी हिस्से में किसी भी जिला में, ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और लगातार आप देख सकते हैं कि मनसुख मांडवीय जो केंद्रीय उर्वरक रसायन राज्य मंत्री है, जो इस मेडिसिन प्रोडक्शन के उस पर उनकी नजर होती है, तो वो हमें बताया है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कैसे राज्यों को वितरित किया जा रहा है ये दवा। बिल्कुल, राज्यों को भी सेंसिटाइज करने की बात कही गई है। आपने बताया कि नागरिकों को, आम लोगों को ये सेंसिटाइज करने की निश्चित तौर पर ज़रूरत है कि वो जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनका फॉलो करें, लेकिन साथ साथ राज्यों को भी जो वैक्सीनेशन की गति है उसको बढ़ाना और साथ ही साथ इनके से जुड़े हुए जो जिस तरह से जो इनका उपचार है उसको स्पीड अप करने के लिए सेंसिटाइज करने की ज़रूरत पर भी बल दिया गया है। इसके विषय में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन को में कोई बाधा ना आए इसका भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है, लेकिन ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि लॉकडाउन का असर वैक्सीनेशन ड्राइव पे नहीं होना चाहिए और जो लोग वैक्सीनेशन में जिनकी ड्यूटी है जो कर रहे हैं उनको दूसरे काम में भी नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वैक्सीनेशन जो लोग एलिजिबल है, चाहे वो 18 साल से अधिक उम्र के हो या फिर 45 साल के अधिक उम्र के हो, उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलते रहे, बल्कि उसमें और तेजी लाया जाए और साथ ही साथ उनमें किसी तरीके से अवरोध ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है इस पूरे समीक्षा बैठक में। और ये भी कहा गया कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए वैक्सीनेशन को लेकर कि वो आगे आए और वैक्सीन ले, ताकि वो जो कोरोना के जो संक्रमण है इसकी चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। जी, लॉकडाउन का भी एक पहलू है, तमाम सारे राज्य जो है वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन्स को लेकर के भी कुछ बात हुई हो, लोगों को सेंसिटाइज करने की, जिस तरह से आपने बताया राज्यों को सेंसिटाइज करने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, देखिए लॉकडाउन में तमाम कदम उठाने की बात है। एक तरफ तो लोगों को भी जागरूक किया जाना है इस बीमारी के बारे में कि कैसे इसका बचाव करें। सबसे पहला तो जरूरी है कि बचाव जरूरी है, जो रूट कॉज है इसका संक्रमण का वो है कि इसको फैलने से रोका जाए। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको मास्क लगाना है, बेवजह घर से नहीं निकलना है, आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है और हाथ साफ करते रहना है, 2 गज की दूरी है, ये इसको पालन करते ही रहना है। ये तो गांव के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, टायर 2 टायर 3
जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला मुख्यालय है, वहां से लेकर के गांवों तक में भी इसकी प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, क्योंकि अब मामले देखे जा रहे हैं कि गांवों तक भी फैल गया है। तो गांव में लोगों को अगर जागरूक लोग रहेंगे तो उनको बचाव में मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर है, चाहे अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, रेफरल हॉस्पिटल हो, या फिर पीएचसी हो, सीएचसी हो, या आयुष्मान भारत के जो हॉस्पिटल्स है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, वहां पर पर्याप्त व्यवस्था हो कि अगर कोई संक्रमित होता है तो कोविड केयर सेंटर या कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में उनको रेफर करके भर्ती करा जाए, उनका देखभाल हो। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन, जहां पर भी क्लस्टर देखा जा रहा है कि अगर केस ज्यादा यहाँ आ रहा है तो वहां पे सख्ती से कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, उसका पालन हो, वहां पे हाउस टू हाउस सर्विलेंस किया जाए, घर के लोगों की, आसपास के लोगों का जो भी अगर कोई लक्षण किसी का आता है तो उसका टेस्टिंग हो, टेस्टिंग के अलावा उनके सर्विलेंस पे उनको रखा जाए। ये तमाम कदम उठाने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि जो वैक्सीन की जो बर्बादी होती है उसको भी कम किया जाए, जितना कम से कम किया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी कई सारे राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी बार बार राज्यों से कहा गया कि वैक्सीन की बर्बादी 1% से नीचे लाना है। ये भी सुनिश्चित करने के लिए किया जाए, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही उपयोगी है, बहुत कीमती है, और अगर वैक्सीन की बर्बादी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, और हम इस महामारी के चपेट से निकलने में हम पूरे देश को मदद मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर तो एक बेहद महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जिसमें तमाम केंद्रीय मंत्री और दूसरे जो इसके आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहे हैं, और कोविड की पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया है, उसकी समीक्षा की है, दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली है, वैक्सीनेशन ड्राइव की किस तरह से चल रहा है, इसको कैसे स्पीड अप किया जाए, इन सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार जानकारी प्रधानमंत्री ने ली है। और अपने इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वेद प्रकाश के पास आते हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, एक सवाल हमारे एक कॉलर ने पूछा है, वो ये एक दर्शक ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं कि अगर ऐसी जगह जहां पर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, मसलन सुदूर गांवों में, जो दूरस्थ गांव हैं, वहां पर किस तरह से अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है, यानी कि लक्षण आते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, तब जबकि कई बार उनके पास टेली कॉलिंग की भी सुविधा नहीं होती। और ख़ासतौर पर वो एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर कोई छोटा बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, उसके अंदर इस तरह से कुछ लक्षण आते हैं तो क्या करना चाहिए? निखिल, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो सवाल आपने रखा है, और मैं बताऊं कि अभी जो कोविड की जो प्रसार है इन्फेक्शन का, वो गांव और छोटे कस्बों तक पहुंच चुका है, और बड़ी संख्या में लोग इससे इन्फेक्शन की जद में आ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज की जहाँ पे कमी है, वहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी हेल्थ सिस्टम है और जो ANMs हैं वही उसको देखते हैं, या फिर अगर प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड या उस तरह के नहीं होते। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस प्रकार से वहाँ पे आइडेंटिफाई करें लक्षणों को, और किस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। बहुत ही इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके बताऊं तो देखिए, जो लक्षण है उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता है। बुखार आना, शरीर में टूटन होना, या फिर बहुत कमजोरी महसूस होना, खांसी आना, या उल्टी दस्त भी अब इसमें शामिल हुआ है, काफी लोगों में ये भी लक्षण आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि सांस फूलने के या ऑक्सीजन का लेवल कम हो, जिसे या तो नाप सकते हैं या नहीं, या बेहोशी की शिकायत हो वहां पे, तो वैसे लोगों को बहुत प्रॉम्प्टली हम लोगों को ट्रीट करने की जरूरत है। और इस समय मैं ये कहूंगा कि जिनको भी इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको जब तक वो प्रूव नहीं हो जाए कि ये कोविड नहीं है, तब तक उनको कोविड मान करके ही ट्रीटमेंट इस समय करना चाहिए जी। और साधारण जो ट्रीटमेंट है, मैं वहां पर जो अगर कुछ गाइडेंस इसमें हम लोग अगर उनको दे पाते हैं, जो वहाँ की प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा ऐसे में। और मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी साधारण दवाइयां हैं, जैसे पैरासीटामोल है बुखार में, एंटी एलर्जिक्स हैं जिसमें लिवोसिट्रीजिन भी दी जा सकती हैं, साथ में जो आइवरमेक्टिन है उसको भी देने के लिए 12 mg 3 दिन तक के लिए ये दवाई दी जा सकती है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट प्रोफाइल नहीं है। इसके साथ ही साथ जो फीवर अगर क्रॉस करता है 100, तो पैरासीटामोल
का यूज किया जा सकता है। ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, इसका सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। जी इसके साथ ही साथ जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी या जिंक है, इनको भी हम लोग दे सकते हैं पहले फेज में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं निखिल जी ये रखना चाहता हूँ कि जब कफिंग आ जाए, जब खांसी आ जाए 5-6 दिन बाद, जैसे कोविड के सिम्टम चल रहे हैं, हम लोगों ने साधारण इलाज किया, इसके 5-6 दिन में यदि खांसी आ रही है या चेस्ट टाइटनेस है या सांस फूलने लग रही है, तो ऐसे में वहां पे चूंकि उपलब्ध नहीं है ज्यादा संसाधन की जांच हो सके लोगों की, तो ऐसे में मैं कहूंगा कि जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स हैं जी उनको संपर्क में लेकर के जो हमारी जो स्टेरॉइड थेरेपी है और खून पतला करने की दवाइयां हैं, जिसमें डेक्सामेथासोन टैबलेट है, जिसकी की डोज को लेकर के काफी संशय है लोगों में। कई अलग अलग भिन्न तरीके के इसमें हम लोगों के पास प्रेस्क्रिप्शंस आते हैं। तो मैं कहूंगा कि पहली डोज को अच्छी डोज दें, मतलब इससे हिचके नहीं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहां पे रूरल एरिया में डेक्सामेथासोन की पहली डोज को एज फार एज 16 mg तक दे सकते हैं। इसके बाद 8 mg बीडी दे सकते हैं 3 दिन, इसके बाद 4 mg सुबह शाम दे सकते हैं। कुछ नहीं है तो इकोस्प्रिन, जब तक खून पतला करने की दवाई, या एक पेन जो पेंटाप्रोजोल है उनके साथ में हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं। सिंपल एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम साथ में दे सकते हैं। चलिए इस पर हम विस्तार से आपसे जो जानकारी है वो जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। बिहार से संजय कुमार हमसे बात करना चाहते हैं। जी संजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी प्रणाम सर। प्रणाम। और सर बिहार शरीफ में ESI सेंट्रल लेवर हॉस्पिटल में भर्ती है मेरा पेशेंट, और सर 10 रोज हो गया है वहाँ ऑक्सीजन पर है, और 24 घंटा में सर ऑक्सीजन लेवल हाई और लो होते रहता है, माने 68-70% आ जाता है, बाकी बहुत देर ठीक रहता है। डॉक्टर्स आए थे सीनियर, वो बोले कि सब ठीक हो जाएगा, जो अभी समय लगेगा इसमें। 4-5 तरह का इंजेक्शन वगैरह भी चल रहा है डॉक्टर साहब के माध्यम से। और ऑक्सीजन लेवल जो हाई लो होता है सर, इससे थोड़ा सा हम लोग ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो ऑक्सीजन लेवल हाई लो जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये आप जानना चाह रहे हैं, ये सवाल है आपका? हाँ, I think that is डॉक्टर what he पद्मा says. जी डॉक्टर पद्मा। तो हाँ, ये अक्सर होता है उम्र पेशेंट का हमें पता नहीं, पर जिनका भी हो जी। तो जैसे है कि जो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो रहा है, जैसे भर्ती होते पहले उनको जस्ट प्रोंग्स या जो ऑक्सीजन मास्क के जरिए जो ऑक्सीजन दिया जाता है, अगर उससे वो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है, देन एक होता है कि एक बैग लगा देते हैं वहां पे, तो ओके, तो उसमें उस बैग के जरिए वो ऑक्सीजन उनका मिलता है, उससे भी बढ़ता है। वो भी नहीं है, देन दे गो टू हाई फ्लो नेसल फ्लो, एंड अगर वो भी नहीं है देन दे गो टू वेंटिलेटर। सो कई स्टेप्स होते हैं। जब ऑक्सीजन लेते हुए मेंटेन्ड है, देन उनको बाथरूम जाना है, तो उठ के देन दे गो टू द बाथरूम या कुछ एक्टिविटी करते, उस दौरान वो ऑक्सीजन फ्लक्चुएट होता है। जैसे पहले में जैसे बैठ गए, खाने के लिए बैठ जाते, खाने के लिए वो ऑक्सीजन निकालते, तो ऑक्सीजन लेवल समटाइम्स कम हो जाता है। ये अक्सर देखा जाता है, तो ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। हालांकि एक्सरे और सीटी टेस्ट में कितना वो ये जो लंग की इन्वॉल्वमेंट, फेफड़ों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना पैचेस आता है, वो देखते हैं, और उसमें एंटीबायोटिक्स भी चलती है, और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके जरिए से जो रिक्वायरमेंट स्टेरॉइड का होता है वो भी बढ़ा देते हैं, और ये धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। तो चिंता मत करिएगा, ये फ्लक्चुएशन ये नोटेड है, ये होता है इस कोर्स में, और अगर आपके डॉक्टर ये कह रहे कि ठीक हो जाएगा, तो उम्मीद कर लीजिए ये ठीक ही हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह के मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जो मास्क है वो बेहतर होना चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि N95 मास्क यूज़ करें या सर्जिकल या क्लॉथ मास्क, और कौन सा मास्क इसमें इफेक्टिव है, और ये कहते हैं कि अपने मास्क को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम, आप बताएंगे? जी हाँ निखिल जी, मास्क बहुत ज़रूरी है इस समय। आई थिंक जैसे कि वैक्सीन है, उसी तरह से मास्क भी बहुत बहुत प्रीशियस है, और प्रॉब्लम यही है कि बहुत तरह के मास्क अवेलेबल है मार्केट में। इसमें N95 जिसको कि गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छा प्रोटेक्शन देता है, बट ये बेसिकली डॉक्टर्स के लिए है या हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जो हॉस्पिटल के अंदर है।
अगर कोई मरीज के साथ कोई उसका परिजन उसके साथ है तो उसको भी N95 पहनना चाहिए, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन के रेट बहुत ज़्यादा है। जबकि पब्लिक में अभी भी हम कहेंगे कि कपड़े का मास्क ठीक है, अगर सभी लोगों ने कपड़े का मास्क पहना है तो उससे भी कफ रिफ्लेक्स उससे रुक जाता है और उससे भी लगभग 90% तक प्रोटेक्शन हो सकती है। लेकिन N95 मास्क प्रॉब्लम ये है कि एक तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, महंगा पड़ता है, और दूसरा है कि इसको धो नहीं सकते। अगर आप धोएंगे तो इसकी जो क्षमता है, जो प्रोटेक्शन की जो भी प्रक्रिया है वो एक्टिविटी चली जाती है। तो इसको आप एक बार पहनिए, और अगर पहनने के बाद जैसे डॉक्टर्स लोग ये पहन रहे हैं उसको हम 3-4 दिन के लिए अलग कहीं ड्राई प्लेस पे रख देते हैं और उसको हम रीयूज भी करते हैं जी। जब तक कि ये पूरी तरह गीला नहीं हो जाता या स्टेन गंदा ना हो जाए। हम इसको 3-4 बार यूज करते हैं क्योंकि ये भी बहुत प्रीशियस हो गया है। जबकि पब्लिक में इस तरह से कर रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम कहेंगे कि पब्लिक को नॉर्मल कपड़े का मास्क पहन लीजिए। और इसके बीच में एक सर्जिकल मास्क भी आता है जो कि वो भी बहुत इफेक्टिव है, बट वो 4-6 घंटे में के बाद उसको डिस्पोज करना पड़ता है, और जबकि उसकी भी 90% तक प्रोटेक्शन की क्षमता है। तो टेम्पररी यूज के लिए सर्जिकल मास्क, पब्लिक यूज के लिए कपड़े का मास्क जो कि बार बार धो सकते हैं, और जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल के जो बार बार विजिट कर रहे हैं उनके लिए N95 मास्क अप्रोप्रिएट रहेगा। या इवन होम आइसोलेशन में अगर कोई पॉजिटिव है और उसके परिजन उसके आसपास हैं, उसको N95 मास्क पहनना चाहिए। बट खोलते और पहनते समय अगर वो हाथ लगाते तो उसके हैंड हाइजीन, सैनिटाइजर, उस सब का भी पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो वायरस उसके मास्क के बाहर लगे हुए हैं, खोलते समय जब वो रखता है कहीं पर, वो अगर फेस में टच करता है और या मुंह में टच करता है, आईज में टच करता है, तो वायरस जो रुके हुए थे वो भी चले जाएंगे। तो उसका ख्याल रखते हुए N95 जो बिल्कुल करीबी लोग हैं पेशेंट के और जिनको इन्फेक्शन है उन्हीं के लिए रहेगा। जी। All right, I'll take another question to Dr. Ved Prakash. Dr. Ved Prakash, Mr. Rajan Mathur says if mild fever persists for the 10th day since the symptoms appeared first, should CT scan be done? And also added to that, another viewer is asking, Shivani Mangla is asking that what to do if HR CT scan score comes above 10. She's asking you to explain the figure and how things should be handled in this case. यस प्रीति, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग इसको 6 दिन तक अगर सिम्टम्स लगातार बने हुए हैं तो इसके बाद यदि कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जिसमें सूखी खांसी बढ़ जाना, जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होना या सांस फूलना, या सीटी स्कैन अगर कराया गया है तो उसमें अर्ली भी अगर चेंजेस अगर उसमें आ जाते हैं तो ये बिल्कुल अलार्मिंग है। और ऐसे में बिना किसी देरी के तत्काल जो स्टेरॉइड्स हैं उनको स्टार्ट करना चाहिए। और जो मैं फिर कहूंगा कि पहली डोज अच्छी देनी चाहिए। बस ध्यान ये रखना है जो हमारे डॉक्टर्स हैं कि उनके सुपरविजन में लें एक तो, दूसरा शुगर और जो हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें शुगर के लेवल्स भी बढ़ सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी इसमें बढ़ सकता है। और साथ ही साथ खून पतला करने की जो दवाइयां हैं जो साधारण तौर पर जिनकी अभी जिक्र हुआ था उनको भी एनफोर्स किया जा सकता है। साथ ही साथ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कोई लें और एक पेंटोप्रेजोल या जिस तरह के जो पीपीआईज हैं कोई वो भी ऐड करना होगा। तो इस प्रकार का जो ट्रीटमेंट है इसमें कोई देरी नहीं करें, और ये लगभग 7 दिन का जब अगर ये ट्रीटमेंट चल जाएगा तो 99% में मैं कहूंगा कि ये क्लियर हो जाता है और क्लिनिकली बेटर होने लगता है एक ही दिन में पेशेंट, और फिर फर्दर एडमिशन की या फिर कोई ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी नहीं आती है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल अगर हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं इस समस्या को तो हमें जल्दी से जल्दी स्टेरॉइड और खून पतला करने की जो दवाइयां हैं उन ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए, और डोज अपने डॉक्टर से सलाह करके अच्छी डोज शुरुआत में लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, राहुल कुमार हमें कॉल कर रहे हैं। जी राहुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी दादी माँ है, वो उनका 80+ एज है, उनको मैं 24 तारीख को उनका टेस्ट करवाया था, वो पॉजिटिव आई थी, बट उनका जो हम वैक्सीन का डोज भी लगवा चुके हैं तो उनके शरीर में सिम्टम्स तो कोई नहीं, सिर्फ खांसी और उनको बलगम आ रहा है। पहले से टीबी पेशेंट थे वो,
और शरीर में ज्यादा कमजोरी आ रही है, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर। जी डॉक्टर पद्मा, इनके सवाल का जवाब देना हाँ, चाहेंगे? तो इनको दोनों शॉट्स मिल गया या तो मोस्ट लाइकली मे बी शी इज टोटली वैक्सीनेटेड। तो ये देखा गया कि जिनको भी वैक्सीनेट हो गया तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, पर वो इन्फेक्शन ज्यादा तक मोस्ट मेजॉरिटी में बहुत माइल्ड रहेगा, तो वो एक अच्छी खबर है। तो इनको भी आप आइसोलेट कर लीजिएगा, उम्र बहुत ज्यादा है तो इनको सावधान रहना कि आप अच्छी तरह हाइड्रेशन दें, पानी दें, डिहाइड्रेशन नहीं हो, प्रोटीन का डाइट रखें, और जो सिम्टोमेटिक मतलब खांसी के लिए थोड़ा सा आप कुछ एंटी एलर्जिक दे दीजिएगा, थोड़ा एंटीबायोटिक जरूर देना पड़ेगा, और बुखार के लिए बुखार की दवाई लेना है। सेम ऑक्सीजन सैचुरेशन आप मॉनिटर कर लीजिए। उम्र ज्यादा है परंतु वैक्सीनेट हो गया तो आप अगर आइसोलेट करके ये देखभाल कर दिए, देन आई डोंट थिंक कि वो बहुत सीरियस कंडीशन में जाता है। ये देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद जिनको ये इन्फेक्शन होती है उनमें ये जो संभावना कि बहुत सीरियस होना बहुत कम है। इनफैक्ट दैट इज द रीजन हम कहते हैं कि सब लोग को वैक्सीनेट करना है। और आप अगर उनको देखभाल कर रहे और अगर आप अभी वैक्सीनेट नहीं हुआ तो प्लीज आप आइसोलेट हो जाइएगा, अपना भी जांच करा लीजिएगा। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो बस आइसोलेट रहना पड़ेगा 10 दिन, और एक्चुअली 3 दिन अगर ठीक ठाक है तो घर पे आप ही रह सकते हैं और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी पॉजिटिव आई, आपका भी अगर इन्फेक्शन है तो आपको वेट करना पड़ेगा वैक्सीन लेने में। तो कब तक वेट करना पड़ेगा? आपको 4 हफ्ते वेट करनी पड़ेगी, ताकि आपकी शॉट जो है जब आपकी इन्फेक्शन हो, जब आप पॉजिटिव हो, उस समय वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जी, वैक्सीन से जुड़ा हुआ ये एक सवाल और है कि जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं डॉक्टर पद्मा, या जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स होकर निकल गए हैं, यानी थोड़े बहुत सिम्टम्स थे, उन्हें पता नहीं चला, तो ऐसे में वो कैसे वैक्सीन लें, क्या तरीका अपनाएं? So this is an absolutely extremely important question. I'm glad you asked this, Nikhil, because you see the thing is now we have opened up vaccinations, तो लोग आएंगे, and as you said बहुत सारे एसिम्टोमेटिक भी है, परंतु ऐसा भी है कि किसी को अपने घर में कोई सिम्टम्स हुआ, वो पॉजिटिव हुआ, तो ये मान के देख लीजिएगा कि फैमिली पॉजिटिव है, टेस्ट हो या नहीं हो। उस दौरान देन यू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 to 4 weeks बिफोर यू टेक द शॉट। सेकेंड, आपको कुछ नहीं पता, ना फैमिली में कुछ था ना अपने में कुछ है, आप चले गए और वैक्सीन ले भी लिया है, तो डज नॉट मैटर। ज्यादा तक अभी तक जो वर्ल्ड की जो फिगर्स आए हैं, जहां पे 18+ को भी वैक्सीनेट किया और 45+ को भी वैक्सीनेट किया, सैकड़ों को कर लिया है, तो उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो एसिम्टोमेटिक में जब आपको कुछ भी नहीं पता शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अब जब अगर आपको सिम्टम्स है वो सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आप वैक्सीन मत लीजिएगा, आप वेट कर लेना। द पीरियड विच इज एडवाइज्ड इज 4 weeks. In fact, that is the period you take the next shot. Yes. जी. All right, Dr. Ghanshyam Pangte, for a patient who has recovered from COVID, I would want you to explain to our viewers, when is it that the antibodies start building up in the patient who has recovered from COVID, and till what time can he not contract the virus, the disease again? Yes, ma'am. COVID, if you say what is the disease overall, I will say 7 days around, it's a viremia period. So initially virus goes off and total duration of disease is 10 to 14 days. So normally 80%, 90% of the patient will improve after 14 days. And normally after that only antibody response comes. So 7 days or 14 days after that 14 days. So it will be around 21st or a 28th day of the symptom onset. But I will like to highlight that we don't need antibody tests here. We don't advise to get an antibody test for public, and we are even not doing an antibody test routinely for healthcare workers. So this is just information that antibody will develop after recovery after around 2 weeks, but it doesn't matter you have antibodies or not, should not be checked, because we are in a big health issue. We have good number of cases. We are totally strained our healthcare facility. So should not be done antibody tests routinely, only in
investigational purpose can be done. Regarding how long this infection will give protection, the data is there at least 3 to 4 months, or maybe some studies suggest 6 months. So at least maybe 4 to 6 months, if you have an infection, especially moderate infection, you are protected with that. And we don't know, maybe more than 1 year it may give protection, but we don't have data. So time will tell us that how long this protection will be there, but at least 4 to 6 months after infection, there are some protection is there. जी बिल्कुल। और डॉक्टर वेद प्रकाश, एक सवाल इस तरह से आया है कि कोई व्यक्ति सिम्टोमेटिक, माफ़ कीजिएगा, कोई व्यक्ति पॉजिटिव था, पॉजिटिव होने के 20-25 दिनों के बाद उनको चेस्ट में फिर से थोड़ा थोड़ा पेन आता है, अगर वो एयर कंडीशन में रहते हैं या थोड़ा सा ठंडी जगहों पे जाते हैं, तो किस तरह से इसको समझना चाहिए? और वो जानना चाहते हैं कि क्या 15-20 दिन के बाद फिर से यानी कि पॉजिटिव होने के से ठीक होने के बाद, यानी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद, क्या 15-20 दिन के अंदर दोबारा वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं? देखिए निखिल जी, 20-25 दिन अगर निकल चुका है पहले सिम्टम आने के बाद और वो ठीक होकर के आ गए, तो ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, बहुत ही रिमोट चांसेस हैं कि उनको फिर से डिजीज प्रोग्रेस होगी। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार की समस्याएं अगर आ रही हैं, तो उसमें लापरवाही ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, और एटलीस्ट एक एक्सरे भी करा के देख सकते हैं कि जिससे कि कहीं निमोनिया का इसका कोई अगर उसमें एविडेंस मिलता है, तो उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क एक बार कर लें। बहुत ही अनलाइकली है कि डिजीज प्रोसेस दोबारा से इनिशिएट हो सकता है। जी। All right, Dr. Ghanshyam, we're getting this question from one of our viewers, Pooja Bansal. She's 17 years of age and her mother is 40 years of age. Both of them, they got fever. They got themselves tested and the fever ranged from 98 to 99 degrees. They were negative. What is to be done next? However, she also says that she tested negative, but still she has not got her sense of smell back. She's lost her sense of smell. So what is to be done? Okay, I think you said that a patient has some smell and taste issues, which is now very, yeah, so, and fever is not very high. I will say 98, 99 is okay. We usually advise the patient to take paracetamol or antipyretic for fever when patient has 100 fever. So there's no need for much of this antipyretic treatment. But as he said that loss of taste and smell sensation during this outbreak or a pandemic, it's almost more than 95%, 99% it's COVID only. So we already know that although RT-PCR is a gold standard, but it's not 100% sensitive. So if you go with the data available, I will say its sensitivity is around 80%, something like that. So 20% of the patient may still be missed with this RT-PCR test. So as they are not very much symptomatic, they should follow all the precaution what patient of COVID is should be doing. Like they should be isolated at home. They should monitor their oxygen, and regular healthy diet should be there. They can add, that Dr. Ved has already told, zinc and other things can be taken, but I will not suggest ivermectin and all at present because they are not proven cases. If they deteriorate more, saturation falls down, they are feeling very, very fatigued, lethargic, they can repeat the test. Otherwise, normally these type of patients improve after 10 days. And nowadays, even after 10 days, there are views that you don't need a negative COVID test. But I will say clinically, they are COVID in spite of RT-PCR negative. And until unless they have any red flag sign, like they are very, very sick or oxygens are less, they don't need much of investigation like XCT and all. They just monitor themselves, keep their surrounding neighbors and family friends aware that they may be having COVID, so that they can take care of them even in isolation. And any emergency is there, suddenly someone become ill, they should help them to reach hospital, nearby hospital. जी, एक बार अपने दर्शकों के लिए समझना ज़रूर चाहेंगे कि लक्षण होने पर भी RT-PCR की रिपोर्ट नेगेटिव क्यों और कैसे आ जाती है। फिलहाल हमारे साथ में एक कॉलर यहाँ जुड़े हुए हैं, संजय कुमार, जो कि जयपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। जी संजय जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब।
मेरे एक रिश्तेदार हैं जिनका ANA पॉजिटिव है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? जी, एक बार अपना सवाल फिर से पूछिए जरा ऊंची आवाज में। मेरे रिलेटिव है जिनका ANA पॉजिटिव है, जिसको जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर पद्मा। ले सकते हैं सर। तो ये जो ANA इज अ वेरी नॉन स्पेसिफिक पैरामीटर, पर यस वो एक ऑटो इम्यून डिसीज का एक पैरामीटर है, बट इट्स अ वेरी नॉन स्पेसिफिक, वो कई डिसीज में पॉजिटिव आ सकता है। पर इन जनरल जो इम्यून डिसऑर्डर्स है, ऑटो इम्यून डिसीजेस है, हमारे से न्यूरोलॉजी में मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, इन सब का जो है कि वैक्सीन आप ले सकते हैं, वैक्सीन आप ले सकते हैं। कुछ डिसीजेस में कुछ तरह के मेडिसिन ऑलरेडी चलते हैं, जैसे स्टीरॉयड चल रहे हो, तो स्टीरॉयड की मात्रा एक लिमिट तक आनी चाहिए, उसके बाद ही वैक्सीन लेना होता है। और कुछ मेडिसिन होते हैं जो बड़े मेडिसिन है, जैसे रिटुक्सीमैब है, कुछ और मेडिसिन है, उसका अपना अपना गाइडलाइंस है, तो अपने डॉक्टर के सलाह पे ही आप जाइएगा। पर इन जनरल इस डिसीजेस में वैक्सीन आप ले सकते। दूसरा निखिल जी, इफ आई मे ऐड ऑन टू दैट RT-PCR बीइंग नेगेटिव, जी, बिकॉज आजकल जो हम देख रहे हैं कि इट इज सीन, एक तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यस इट इज नॉट 100% पॉजिटिव, ये नहीं कि वो 100% पिकअप कर लेगा, बट बियॉन्ड दैट ये भी देखा गया कि आजकल जो है इट इज अ वे इट इज बीइंग कलेक्टेड, who is the person who is actually collecting the sample. Second, the lab accreditation and what has been the way of that being analyzed. जी, So there are a lot of issues into this in terms of the bulk of the tests which are being ordered and which are being done in various locations. So there are a lot of these things. So therefore clinically अगर anosmia and agusia ये इतनी classical symptoms है, if they are there, then we should be very careful, and खाली RT-PCR के level पे we should not be going. So there are a lot of reasons why RT-PCR can still be negative. जी। डॉक्टर घनश्याम, एक सवाल लोग जानना चाहते हैं कि कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड्स का क्या रोल है? कोरोना के इलाज में अगर मैं कहूँ तो बहुत कम ही ड्रग्स हैं जो कि अभी हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर पाई हैं। इसमें जो एक मेजर ट्रायल हुआ था, स्टडीज हुई थी वेस्टर्न कंट्री में, रिकवरी ट्रायल, उसमें देखा गया कि जिन पेशेंट को स्टेरॉइड मिला था उनमें सर्वाइवल या वो ज़्यादा बच गए थे कंपेयर टू जिनको स्टेरॉइड नहीं मिला था। तो अब ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन गया है। कोई भी पेशेंट जो मॉडरेट मतलब जिसका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम होता है, उसको स्टेरॉइड जरूर देना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 95 से 100% तक हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन आ सकता है, बट 94 से ऊपर 95, 96, 97, 98, 99 को स्टेरॉइड अभी नहीं देना चाहिए अनटिल अनलेस कोई क्लिनिशियन उसको या फिजिशियन उसको कहे कि नहीं इसमें बेनिफिट हो, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल पर्सपेक्टिव भी होते हैं किसी को स्टेरॉइड देने के। बट आइडियली 95 से ऊपर में स्टेरॉइड अवॉइड करनी चाहिए अनटिल अनलेस कोई बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो। तो हम इसको 94 से 90% के बीच में जिनका ऑक्सीजन होता है हम उसको मॉडरेट डिजीज कहते हैं, और जिनका कि 90 से नीचे आ जाता है, 80-85 आ जाता है या 85% के अराउंड, तो हमको सिवियर डिजीज कहते हैं। तो स्टेरॉइड जैसे डॉक्टर वेद ने पहले बताया कि मॉडरेट डिजीज में हम ओडी या एक बार दे सकते हैं, जबकि सिवियर डिजीज में हम हाई डोज भी देते हैं। कुछ लोग 16 mg BD डेक्सामेथासोन यूज कर रहे हैं, सॉलिमिड्रॉल भी कर रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूंगा ये दुधारी तलवार है। स्टेरॉइड कोई फिजिशियन या कोविड एक्सपर्ट ही दे तो बेटर है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि नॉन मेडिकोज या जो डॉक्टर नहीं है वो नहीं संभाल सकते हैं। अगर किसी को अल्सर की बीमारी है, उसको स्टेरॉइड दे दिया तो उसको पेप्टिक अल्सर की ब्लीडिंग हो सकती है, आंतों में ब्लीडिंग हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब पहले ये भी बात जानकारी दी गई कि स्टेरॉइड लेने से कई लोगों को, जिनको डायबिटीज है उसकी शुगर अनकंट्रोल हो जाती है, और जिनको डायबिटीज नहीं है उनको डायबिटीज हो जा रही है इवन हफ्ते भर की स्टेरॉइड से। तो शुगर से स्टेरॉइड से हाइपरटेंशन भी हो सकता है। तो जो सिवियर डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है, स्टेरॉइड दीजिए। माइल्ड डिजीज में देंगे बेनिफिट नहीं होगा, हार्म ज्यादा हो सकता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो रैंडमली स्टेरॉइड नहीं लीजिए। मार्केट में बिल्कुल सब लोगों ने स्टॉक कर लिया है, बिकॉज
इंडिया के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी दवाइयाँ मिल जाती है। तो इससे ये होगा कि जिनको जरूरत है उनको स्टेरॉइड या दवाइयाँ नहीं मिल पाएगी, जबकि जो जिनको खाना भी नहीं चाहिए उन्होंने स्टेरॉइड पहले ही अपने अपने घर में रखी। जी जी। तो मैं कहूँगा सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ये स्टेरॉइड लीजिए। उसके बिना स्टेरॉइड बहुत ही खतरनाक दवाई भी हो सकती है और जीवन दाता भी हो सकती है। जी। All right, Mr. Rajat Gupta wants to know, Dr. Ved Prakash, this question would be to you. My daughter, 23 years of age, is a lupus patient. She gets fever off and on in the range of 99.5. What should we do? The rheumatologist has stopped immunity suppressant. What next has to be done? रजत जी, जो इस समय फीवर या जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको हम लोग निश्चित ही इससे जोड़ करके देख रहे हैं कोरोना से। तो ऐसे में जो रिमेटोलॉजी का इश्यू है उनका, तो मुझे लगता है कि स्टेरॉइड्स भी उनके चल ही रहे होंगे। उनको एक बार अपने डॉक्टर से एक संपर्क जरूर कर लें आप, और जो ट्रीटमेंट है वो एक एक्सपर्ट के साथ में मिल करके ही लेना ज्यादा उचित होगा। लेकिन यदि फीवर 100 क्रॉस करता है तो पैरासीटामोल जो 650 mg की जो टैबलेट्स हैं उनको यूज करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और 3 से 4 बार दिन भर में ये टैबलेट का यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने एक्सपर्ट से जिनसे उनका इलाज चल रहा है उनसे एक बार आप जरूर संपर्क। जी मैडम, मैं इस पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। ल्यूपस जैसे कि एक सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस डिजीज होती है, उसमें फीवर पर से भी हो सकता है। तो 99.5% फीवर भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको कोविड हो गया या नहीं हो गया। अगर कोविड है और उसके साथ लूपस पहले से था तो उसमें कोविड का टेस्ट जैसे RT-PCR कराना चाहिए, और कोविड का जैसे इलाज है वो रूटीन वही सैचुरेशन के हिसाब से, जनरल कंडीशन के हिसाब से देना चाहिए। लूपस में भी स्टेरॉइड देते हैं और इस कंडीशन में भी देते हैं। तो ऐसा देखा गया कि जो पहले से स्टेरॉइड में है उनमें डिजीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि वो पहले से इम्यूनोसप्रेसेंट में है। बट ये भी है कि वैक्सीनेशन इसमें एक इशू आ जाता है। तो ये जो कि गाइडलाइन है रूमेटोलॉजिस्ट की, यूरोपियन और अमेरिकन एसोसिएशन की, उनके हिसाब से अगर कोई 10 mg से ऊपर स्टेरॉइड ले रहा है, अगर उसको आप वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, वो वैक्सीन ले सकते हैं, बट वैक्सीन के बाद उनका एंटीबॉडी रिस्पांस उतना अच्छा आएगा नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड जो हाई डोज में लेते हैं उनका इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है। तो अगर हाई डोज में है तो उनका रूमेटोलॉजिस्ट देख सकता है कि डिजीज कंट्रोल है तो स्टेरॉइड कम कर दें, उसके बाद वो वैक्सीन लगा लें। और अगर उसके और कोई ड्रग देख लें कि कुछ बायोलॉजिक्स ड्रग होती हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि उनको एंटीबॉडी रिस्पांस नहीं आता है, बट लूपस पेशेंट वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और फीवर का कॉज ढूंढना पड़ेगा कि ये लूपस की वजह से है या फिर ये RT-PCR पॉजिटिव या कोविड की बात हो रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर समय लगभग समाप्त हो चुका है। चलते चलते बहुत संक्षेप में डॉक्टर पद्मा, आपसे आखिरी सवाल। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि ठीक हो रहे मरीजों की हालत आखिर क्यों बिगड़ रही है, बहुत संक्षेप में बताएं और कैसे इससे निपटें। तो मतलब ठीक होते होते दोबारा बिगड़ रहा है, ये सवाल है? जी निखिल जी। जी बिल्कुल, ठीक होते होते जो आखिरी में बिगड़ जाती है। जी बिगड़ जाती, बिकॉज ये कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हमने देखा गया कि कोविड की कॉम्प्लिकेशन में एक लगातार निमोनिया नहीं, जो बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है लंग की खराबी से, दूसरा दिल की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स और ब्रेन की प्रॉब्लम्स। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और हम कई सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हम देख रहे हैं। तो ये कोविड कॉम्प्लिकेशंस है, तो इसकी जानकारी भी काफी आ गया है। तो आपको कभी भी लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, सांस अभी भी फूल रहा है, कुछ एक तरह के एकदम से नमनेस या वीकनेस आ गया है या बेहोशी की हालत आ रही है, तो तुरंत दोबारा हॉस्पिटल आना जरूरी है। और इसको प्रिवेंट करने का भी जो एक तरह के ब्लड पैरामीटर्स है, उसके जरिए मेडिसिन लगातार 1 महीने तक चलती है कोविड खत्म होने के बावजूद। जी बिल्कुल। चलिए, तो हमारे पास वक्त भी खत्म हो गया। सवाल अभी बहुत सारे लोगों के लगातार आ रहे हैं, कुछ कॉलर्स भी वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको हम अगले संस्करण तक के लिए रोकेंगे अपने डॉक्टर स्पीक के लिए। और अपने सभी विशेषज्ञों का, डॉक्टर पद्मा आपका, डॉक्टर घनश्याम आपका और डॉक्टर वेद प्रकाश आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए।
तो निश्चित तौर पर ये इस कार्यक्रम के अंत में हम आ चुके हैं और आप हमारे इस डॉक्टर स्पीक से निश्चित तौर पर लाभान्वित हुए होंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको इस संदेश के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करिए, मास्क लगाइए, 2 गज दूरी मेंटेन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए और हाथ को बार बार धुलते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। तो इसी के साथ में हम आपको डॉक्टर स्पीक के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।